Hello guys, welcome back to the channel. This is Arvind and today is the 16th of March 2025. We are going for our Sunday breakfast ride. For a very long time I have not been shooting videos and not been putting them on YouTube. Well, there's a small reason to it. What has happened is that since my November Karnataka ride, I have been pretty much busy with life. Yet I did some amount of rides and I just kept shooting and recording them. And that's when the big tragedy happened. This is the tragedy. Well, whenever I go off my ride, I shoot my videos, be it on GoPro or any action camera or whatever. I would put it up into this small little tiny hard drive, which generally keeps me company and has been always proved to be a very reliable source of storage. However, the last few days I realized that it has been performing a little different. And that's when I took it out and realized that there has been some crash or there has been some data lost to it. So what has happened, I had to take it to a data recovery expert only to realize that the entire physical media inside it has crashed. Long story short, there have been some 8 or 9 episodes worth of data inside this and now there's nothing much I can do. All that I can do is just stare at my loss and realize where am I gone wrong. I have nearly 4 months worth of riding data inside this, but they are of absolutely no value to me. I can't recreate my memories, repost them into videos, cannot make vlogs out of them. It's just a plastic piece of trash now. Anyhow, efforts will be taken just to make sure that whatever data that can be pulled out of it, be pulled out. That's going to cost me a lot of money. Yet, I'm going to take that effort and let me see if that's possible. If not, well, this episode will be the start point for the next season of 2025. So, let's get going. सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो जैसे मैंने छोटा सा एक रिकैप दिया था, छोटा सा एक इंट्रो दिया था, लेकिन जितना इसके साथ मैंने मेमोरीज़ बनाया था सब हो गया है बर्बाद। एवरीथिंग हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। डाटा एक्सपर्ट्स के हवाले मैं देता हूँ अपना हार्ड ड्राइव। पता नहीं उससे कुछ हो पाएगा कि नहीं, बट वट एवर बी द केस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जो मेरे राइडर्स हैं, जो मेरे साथ मेरे कोवर्कर्स हैं, उनका आने में थोड़ा सा डिले है। तो गाड़ी में हो गई ये 2 मेजर चेंज। एक है ये जो चेन है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जब थोड़ी रोशनी होगी तो मैं बताता हूँ। दूसरी है मैंने एक नया जीपीएस इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवाया है। सब थोड़ा देखते हैं, तो लाइट में जाके बताता हूँ क्या क्या है। सो गाइस, जैसे कि मैं बता रहा था कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, कम से कम 9 एपिसोड लायक का डाटा था उसके अंदर। काम के सिलसिले में मेरे पास ना टाइम नहीं बन रहा था टू सिट एंड डू माई एडिटिंग एंड गेट माई वीडियोस आउट। बट येट आई वॉज ऑलवेज गोइंग फॉर माई राइड्स। मैं हर बार राइड्स पे रहता था। एवरी एटलीस्ट ऑल्टरनेट वीक, एवरी संडे आई यूज टू बी ऑन अ राइड। छोटा मोटा ही सही, लोकल केरला के साइड सीइंग ही सही, बट देयर वाज ऑलवेज अ राइड। बट दैट्स हाउ फेट इज। अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं रहोगे, you can face some immense setback upon yourself. So one major thing that I can learn is a lesson learned from all these experiences is that I should always be prepared. I should actually create one or more than one backup, actually, maybe in another hard drive or maybe in the net or something. I'm just missing. There was a beautiful ride I had taken through the tiger territory in near Munnar, with not many people are aware of that. So I took that one ride. It was a beautiful ride. I went for a 3-day ride to Ooty Gudalur stretch, yet another beautiful mountainous stretch, elephant and tiger sanctuary kind of a place. Beautiful ride again, solo everything, but this was a beautiful one. Nevertheless, let's wait in this place. This is where my buddies are gonna come. अभी हर राइड पे बाकी लोग मेरे इंतज़ार करते हैं और मैं आता हूँ लेट, लेकिन इस बार मेरा मौका था पहले आने का। मुझे ज़्यादा देर वेट करना नहीं पड़ा, कुछ ही देर में लोग आने लग गए थे। सारे राइडर्स की इतनी तेज़ लाइट देखे मैं समझ गया था कि सब मेरी तरफ ही आए हैं। अच्छा लगा कि आज काफ़ी सारे राइडर्स आए हैं राइड पे। वो तो रेडी हैं, लेकिन मैंने तो सारी सामग्री निकाल के बाहर रख लिया था। सोच रहा था कि वक्त लगने वाला है, पर टाइम तो वेट्स नहीं करना है जब आप ग्रुप राइड पे होते हैं।
So that's it, we roll out. Anyhow, let's ride and then let's see. So guys, the group is all here. पता नहीं फिर से मैं पता नहीं क्यों lead पे हूँ. I think I self-assume the role of a lead whenever I get to be on a ride. The early morning time in Cochin is when you expect there will be less traffic, but on the contrary, you have the most traffic you can ask for in any part of the day. It's always there in the early morning. Look at the amount of traffic. It's always trafficy. Luckily for my case, I think on my track I don't have much of a traffic. दिन का ऐसा एक वक्त आता है जब ना सुबह होती है ना शाम, रात गई नहीं है और सुबह आई भी नहीं। ऐसे वक्त पे जब ठंडी ठंडी हवा लग रही हो सर पे और हम मोटरसाइकिल लेके नेशनल हाईवे पे जब निकलते हैं, दिस इज अ डिफरेंट फीलिंग माय फ्रेंड्स, अ टोटली डिफरेंट फीलिंग। Oh, I forgot to inform where are we going. So we are going to the Chimney Dam. That's where we are heading today. Chimney Dam एक छोटी सी डैम है, 8:30 बजे खुलेगा, लेकिन अपन पहुंच जाएंगे 7:30 को। तो 1 घंटा टाइम बर्बाद करने के लिए ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर इधर उधर टहलते रहेंगे, वापस आ जाएंगे। बस इतना सही है आज का ट्रिप। 10 minutes later. उसी के साथ सुबह हो गई है मामू। थोड़ी सी जब रोशनी हो जाती है तो जब वो कंफ्यूजन सा होता है सिनेरियो, और दैट्स द टाइम आई थिंक आई एंजॉय द मोस्ट राइडिंग। ना रात रहती है उस टाइम, ना सुबह होती है। तो सरवणा भवन थोड़ी दूर आया था, इतने में कॉफ़ी टी का टाइम भी हो गया। चलो सही है, क्या करेंगे हम अपन, चाय ना पिए तो। 1 2 3 4 5 6 7 रेड राज। You are on camera. Tomorrow you will be on YouTube also. सर आते नहीं है। सर नया गाड़ी ले लिया आपने? नहीं, just 5-6 months. 6 months के लिए? फ्रेंड का। चाय वो चीज़ है जिस पे जंग भी रुक जाती है, पर जब धनुष सर ने कहा कि उनको मेरी गाड़ी के ऊपर बैठ के एक बार फीलिंग लेना है, तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। मेरी सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब कोई और आए और मेरी गाड़ी की तारीफ़ करे, और आज फिर से वही एक दिन था जब तारीफ़ मिल रही थी भर भर के। फोटोग्राफी भी हो गई। चलो अभी चलते हैं सरवणा कॉफ़ी एंड टी 24 आवर से। टाइम टू जस्ट गेट गोइंग। इंस्टा 360 को ऐसे एंगल पे मैंने चढ़ा के रखा है कि कुछ तो फुटेज इसका बढ़िया वाला निकले। अब ऐसा लग रहा है ना कि मतलब यूनिकॉर्न का सींग है ये। इट इज़ द हॉर्न ऑफ द यूनिकॉर्न जस्ट पॉइंटिंग फॉरवर्ड। ब्यूटीफुल मॉर्निंग, सो यू कैन सी क्रॉसिंग द चालकुडी टाउन। बाय बाय टू चालकुडी। जो डैम है चिमनी डैम, इट इज़ लोकेटेड इनसाइड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और फॉरेस्ट। अभी लेकिन मार्च के महीने में जब गर्मी चल रही है, पता नहीं डैम के अंदर पानी रहे ना रहे। तो वो है हमारे धनुष सर जो एकदम ब्रांड न्यू मीटिया 650 पे ना स्टीम करते हुए निकल गया आगे से। कॉल पुदुकाट जगह, यहाँ से हमें देना है राइट जाएंगे 2 सेकेंड। सिग्नल हमारे लिए राइट तो नहीं है। चलो यहाँ जाके अपन हॉल्ट पे आ जाते हैं। बस सिग्नल भी ना समझ में नहीं आता, तब मुश्किल कर देता है राइड करना। और 25 किलोमीटर चलना है हमें, 40 मिनट लगेगा डैम देखने के लिए। अब आएगा सही मज़ा, क्योंकि अब हम आ गए हैं छोटे रोड पे, पतले रोड से होते हुए निकलेंगे सड़कों से। अब देखते हैं कैसा आएगा राइड का मज़ा। का ना मतलब द रूरल रोड्स, आई थिंक आई हैव टू स्टैंड अप एंड गिव देम अ सैल्यूट, बिकॉज आई वाज वंस अ टाइम व्हेन आई वाज अ किड, आई हैव सीन दीज वेरी रोड्स एंड दे यूज्ड टू बी इन सच अ बैड शेप, सच pathetic shape that it was not possible for you to drive on this at these speeds of 75-80. Imagine I'm at a speed of 80 km on this kind of a road. So मात्र 13 किलोमीटर बचा है, so 13 kilometers to go and we are somewhere inside a Thrissur district, but beautiful forest path. I think Chimney Dam, which is right ahead of us, Chimney Dam. चलो Chimney Dam ही जाना 13 किलोमीटर में, खुलेगा तो नहीं पहुंचते वक्त। अभी ये है पुदुकाट एस्टेट।
क्या है भाई एस्टेट, हाँ रबर वाला प्लांटेशन है बढ़िया। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं तो पूरा रबर के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे। मैन आई कैन स्मेल द फॉरेस्ट, आई कैन स्मेल द फॉरेस्ट, आई कैन स्मेल द रबर सैपलिंग्स जहाँ यहाँ पे है ना, जो सैप गिरती है। आई थिंक दैट इट मस्ट बी द टाइम ऑफ दैट ईयर जब सैप गिरता होगा। जब पूरा हवा में ना उसकी खुशबू भरी हुई है। गोइंग थ्रू ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फॉरेस्ट रूट। और अगर आप फॉरेस्ट रूट पे चल रहे हो तो इंस्टा बुक बंद करके क्यों बैठा हुआ है, तू भी ऑन हो जा, लेट्स रिकॉर्ड। क्या ब्यूटीफुल सीनरी है, मज़ा आ गया। दोनों तरफ फॉरेस्ट है, ग्रीनरी है। सो आई थिंक वी आर पासिंग बाय द रेजिडेंशियल एरिया ऑफ प्लांटेशन वर्कर्स, क्योंकि यहाँ पे पूरा प्लांटेशन ही प्लांटेशन है। रोड अच्छी हो गई है। सुबह सुबह हल्की सी धूप हो, एक ठीक ठाक सड़क हो, दोनों तरफ हरियाली हो, सामने एक पहाड़ हो, क्या मज़ा आता होगा राइड करते हो। इस मज़े का ना पूरा आनंद उठाते हुए हम चल रहे हैं आगे। दोनों तरफ है बढ़िया सा जंगल, और हाथी की क्रॉसिंग वाली वार्निंग आ गई है, तो भाई हमें थोड़ा सावधानी से चलाना पड़ेगा। जहाँ पे भी केरला में हाथी की वार्निंग वाला साइन आता है ना, हाथी क्रॉसिंग वाला, तो एलिफेंट क्रॉसिंग देखते ही भाई स्लो डाउन हो जाओ, अच्छी तरह देखो आजू बाजू, फिर ही गाड़ी चलाना, क्योंकि कहीं से भी सामने आ जाएंगे अचानक से। तो इसी के साथ भी एंटर द चिमनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भाई साहब क्लोज्ड है लग रहा है। आहा, चलो गाड़ी रोक के वेट कर लेते हैं जब तक ये खुलेगा नहीं। चिमनी डैम, चिमनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों बंद है। तो वहाँ पे होती है बोटिंग। बोटिंग के 4 लोगों का 400 रुपये और 20 मिनट। मुकाम पे तो पहुंच गए, लेकिन धोखा भी भर भर के मिला। आज के दिन चिमनी डैम बंद है। जब लेकिन मोटरसाइकिल बारी बारी में खड़ी है और उसका एक वीडियो निकालने का मौका मिले, तो सच में दिल ही दिल एक बहुत अजीब सी खुशी होती है कि आज का दिन कुछ तो कुछ सही किया। सो हो गई है बहुत बड़ी धोखा। जो चिमनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिस इज़ नॉट ओपन in the month of March. This is closed. It will only open on 1st of April. Apparently there is some forest fire wala season going on here, so they don't encourage any tourist coming over this place. But it's a beautiful place. You get to do a lot of fun activities like trekking, bird watching. You get to go some coracle rides, which is there in this place. I don't think any other place in Kerala I've seen having coracle rides. So there's one wonderful location actually if you want to do all those Chimney Wildlife Sanctuary. So if you're interested in doing some one-day picnic activities in Kerala and you're staying close to Kochi, Thrissur, come over this place. But हमारे साथ फिर से हो गया धोखा। चिमनी डैम आने का प्लान मेरा था, और जबकि अब ये बंद है तो अपना नाक कटवा के सबको वापस लेके जाना पड़ेगा कोचिन। प्रिपरेशन बहुत बहुत ज़रूरी है। तो उसी के साथ हम अपना रास्ता नापना शुरू करते हैं बैक टू होम एट कोच्चि। लेकिन छोटे मोटे पॉइंट्स है, रिवर क्रॉसिंग्स है, वहाँ पे जाएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे एंड एक फ़ोटो वोटो लेते हैं एंड लेट्स मेक दिस ट्रिप ए मेमोरेबल वन। बढ़िया लगता है जब इस स्क्रीन पे ना सारे लोगों का वीडियो बनती हो, बहुत अच्छा लगता है। बड़ा अच्छा सा ना वाइड व्यू एंगल है इसकी, तो दैट समथिंग आई लाइक अबाउट दिस कैमरास व्हिच आर देयर। गुड 1080p कैमरास। द डिस्प्ले ऑल्सो आई थिंक कैलिब्रेटेड 1080p ही है। सो ब्यूटीफुल छोटा सा रिवर क्रॉसिंग देखने को मिल गया रास्ते में। स्पेक्टाकुलर छोटी सी रिवलेट, कांट कॉल इट अ फुल रिवर, बट जो भी अच्छा लग रहा है बिटवीन द फॉरेस्ट इज अ स्मॉल ब्यूटीफुल रिवर व्हिच इज गोइंग ऑल द वे फ्रॉम हियर टिल देयर। नाइस। अभी फिलहाल के लिए आई थिंक वी नीड टू कैच अप विद ब्रेकफास्ट। टाइम हो रहा है अराउंड 9 बजे और सबकी अलार्म बजना शुरू हो गया। सबको भूख लग रही है। अभी तक कम से कम 25 किलोमीटर इस रोड पे चलना है ताकि हम हाईवे तक पहुंच सके, और देन फ्रॉम देयर हाईवे वी हैव टू टेक ऑफ एंड गो एंड फाइंड अ गुड ईटिंग जॉइंट। केरला में क्या क्या जानवर देखने को मिलता है। क्यूट सा बढ़िया सा है ना हाथी। अपने को फ्री में एक हाथी देखने को मिल गया राइड करते करते। चलो ये अराउंड 40 मिनट्स आई थिंक पहुंच गए वापस हाईवे में। अब हाईवे से लगेगा 60 किलोमीटर घर तक। शायद ये ठीक रहे। नहीं खाना खाए। चलो यही हो गया हमारा ब्रेकफास्ट स्पॉट, श्री आनंद भवन
जो भी ऐसा खाते हैं, भूख लग रही है। इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन आज का राइड भी होता है ख़त्म। ब्रेकफास्ट हो गया बढ़िया सा। अब हम हाईवे पे चढ़ चुके हैं, घर पहुंचना है कुछ 1 घंटे से ऊपर टाइम लगेगा। सो विद दैट गाइस, लेडीज एंड जेंटलमैन, टाइम टू से गुड बाय। येट अनदर संडे राइड कम्स टू एन एंड। कुल मिला के कुछ 200 किलोमीटर गाड़ी चली होगी, चल जाएगी। अभी तो पहुंचा नहीं हूँ अपने डेस्टिनेशन तक। सो दैट विल बी द एंड ऑफ द स्टोरी टुडे। इफ एनीथिंग इंटरेस्टिंग कम्स अप, Insta360 will shoot it and put it after this concluding statement. So see you in the next video. Bye bye and ride safe.